السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ شاہدرہ کی چوکی یوسف شہید بیگم کوٹ پولیس نے 15 کی کال پر فوری کارروائی کرتے ہوئے لاپتہ ہونے والے 3 سالہ بچے سبحان کو تلاش کر کے بحفاظت ورثاء کے حوالے کر دیا۔ بچہ گھر سے نکل کر راستہ بھٹک گیا تھا اور اپنا نام بھی نہیں بتا سکتا تھا، جس کی تلاش کے لیے مساجد میں اعلانات اور ہیومن ریسورس کی مدد بھی لی گئی۔ بچے کی بازیابی پر والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ایس پی سٹی بلال احمد نے بروقت رسپانس پر انچارج چوکی رضوان سمیت پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر ایس ایچ او ہربنس پورہ محمد عمران نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو 1.5 کلو سے زائد چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم نے تعلیمی اداروں، ہاسٹلز اور کالجز کے اطراف نوجوانوں کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیس کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ایس پی کینٹ نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب شہزادہ سلطان کی ہدایت پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شعیب خرم جہاں کی زیر صدارت لاہور میں اسٹینڈنگ ریویو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تبدیلی تفتیش کے 16 مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایس پی انویسٹیگیشن بشرا نثار، ڈی ایس پیز اور دیگر افسران نے شرکت کی، جبکہ تفتیشی افسران کو سنا گیا۔ شہزادہ سلطان نے کہا کہ تبدیلی تفتیش کے تمام زیر التوا کیسز جلد نپٹانے اور اس حوالے سے بورڈز کا باقاعدہ انعقاد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گلبرگ پولیس نے طلبہ کو جنسی ہراساں کرنے والے موٹر سائیکل ڈرائیور شعیب کو نور جہاں روڈ سے گرفتار کر لیا، جو متاثرہ طلبہ کو ان ڈرائیو رائڈ کے دوران بہانے سے گلبرگ علی زیب روڈ لے گیا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے نوٹس پر ایس پی شہر بانو نقوی کی ہدایت سے ٹیم کی تشکیل دی گئی، جبکہ ایس پی رجندر میگھوار کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خواتین کے استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایس پی پیٹرولنگ سرگودا ریجن مدثر اقبال نے پل دریائے جہلم، خوشاب اور گروڈ چوک کے ناکہ بندی پوائنٹس کا اچانک دورہ کیا ہے اور ڈیوٹی پر مامور نوجوان افسران اور اہلکاروں کو پنجاب حکومت کے نافذ کردہ نئے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے تاکہ حادثات کی روک تھام اور روڈ سیفٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ ضلع خوشاب غازی عبدالرحمان نے بیٹ ایریاز کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا ہے۔ مظفر گڑھ میں ٹریفک قوانین کو جرم قرار دیتے ہوئے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے تحت ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک اور پیٹرولنگ پولیس کے مشترکہ اسکواڈز نے 24 گھنٹوں میں 280 مقدمات درج کر کے اتنے ہی ملزمان کو گرفتار بھی کیا اور 280 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں قبضے میں لے لی گئیں، جبکہ لاکھوں روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ کارروائیاں بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ، ون وے کی خلاف ورزی، آلٹرڈ، اوور لوڈڈ گاڑیوں اور کالے شیشوں کے خلاف کی گئی۔ ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کی ہدایت پر ضلع بھر کے تعلیمی اور صنعتی اداروں میں آگاہی لیکچرز بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ قوانین پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے چیچا وطنی سرکل میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا، جہاں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے مسائل پیش کیے۔ ڈی پی او نے شکایت سن کر متعلقہ افسران کو موقع پر ہی میرٹ کے مطابق فوری کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے اور کہا کہ عوام کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی، مسائل کا فوری حل اور قانون کی بالادستی ساہیوال پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ساہیوال میں ٹریفک قوانین پر سخت عمل درآمد کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے پولیس خدمت مراکز اور موبائل لائسنسنگ یونٹس کا رخ کر رہی ہے۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو نے سہولت کی فراہمی کے لیے خدمت مراکز کے اوقات کار صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک بڑھا دیے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 850 سے زائد چالان اور 190 سے زائد مقدمات بھی درج کیے گئے۔ ڈی پی او کے مطابق ٹریفک قوانین کی پابندی ہی حادثات میں کمی اور محفوظ سفر کی ضمانت ہے۔
बुरेवाला की मरकजी दाखिली सड़क PIA लिंक रोड तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस रोजाना हजारों गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है और हादसात का खदशा बढ़ गया है। मकामी शहरियों के मुताबिक मरम्मत के लिए रखा गया प्राइवेट ठेकेदार सिर्फ पत्थर डालकर गायब हो गया है, जबकि इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस सड़क की तामीर नू मुकम्मल नहीं हो सकी। शहरियों ने वज़ीर पंजाब बने नवाज शरीफ से सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी तामीर का मुतालिबा किया है। ये जो रोड है बुरेवाला का, ये मुल्तान का और बुरेवाला का दाखिली रास्ता है और मेन गुजरगाह है बुरेवाला की। इस रोड को ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका है, इंतहाई टूट फूट का शिकार है। 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है और हमारे शहर से तल्लक रखने वाले डिवीज़न मुल्तान के जो कमिश्नर है राना अमर करीम, उनका भी गुजर इसी सड़क से होता है, लेकिन फिर भी ये इंतज़ामिया की तवज्जो का मरकज़ ना बन सका है। आए रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ पर बड़ी छोटी रोज़ाना की तादाद में हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। हमारी वज़ीर आला से ये अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहर के जो मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके और ट्रैफिक के जो बहाव है वो जारी रह सके। अभी ये बुरेवाला जो है सिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के नाम पे जाना जाता है और ये बहुत ही पुराना रोड है जिसे मुल्तान का दिल्ली रोड भी कहा जाता है। अरसा दराज से इस रोड की जो है वो किस्मत जो है ना वो बदल नहीं सकी है और जगह जगह से ये टूटा हुआ है, गड़े पड़े हुए हैं। जो शहरी कारोबारी हजरात है, तलबा और तालबात को यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो हमारी कमिश्नर मुल्तान राना आमिर करीम साहब से गुजारिश है कि आपका भी गुजर यहीं से होता है, तो बराह करम इस रोड को जो है जल्द अज जल्द तमीर किया जाए। समुद्री के इलाके मुरीदवाला में वज़ीर पंजाब बने नवाज शरीफ के विजन के तहत क्लिनिक ऑन व्हील्स का इनेकाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी ज़ियाउल्लाह गुजर की रिहाइश गाह पर किया गया। सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना, अद्वियात की फराहमी और अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी दी गई। मोहल्ला इस्लामपुरा, गुजर बस्ती और गिरदुनवा के शहरी इस सहूलत से मुस्तफीद हुए। चौधरी ज़ियाउल्लाह गुजर ने इस इक़दाम को आवाम के लिए सेहत की सहूलत घर की दहलीज पर फराहम करने की बेहतरीन मिसाल करार दिया है। ओकाड़ा में CCD की मंशियात फरोशों के खिलाफ एक ही रोज़ में 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश हलाक हो गए, जबकि उनके साथी फरार होने में कामयाब रहे। मुल्ज़िमान के कब्जे से 2 किलो से ज़ायद चर्स और 3 पिस्टल भी बरामद किए गए। फायरिंग में एक CCD अहलकार को ज़ख्म भी आए, ताहम बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की वजह से वो महफूज रहा। एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा ने पंजाब को मंशा से पाक करने का आज़म का इजहार किया है, जबकि ज़िले अफसरान CCD ने टीम की कारकर्दगी को सराहा है। मियांवाली के इलाके व बचरा में पैरा फोर्स की कार्रवाइयों के खिलाफ अंजुमन ताजरान की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई, जिसके बायस तमाम कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स बंद रहीं। गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई के दौरान सदर अंजुमन ताजरान मलिक इरफान बच्चर समेत दीगर दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और मुतअद्दिद दुकानें सील भी कर दी गईं, जबकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस नफरी ने इलाके में गश्त भी किया। कोटपिठन के मौजा शहर नंदू खान में शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का क्या कहना है, मजीद तफसील बताएंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। जी अफजल फरीदी, बताइएगा इस सब आखिर क्या मामला है? आज बिल्कुल कोटमिठन के इलाका मौजा शहर नंदो खान की मेन अर्जी वाला रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं और इस रोड की हालत ये हो चुकी है कि जगह जगह पर इस रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं। रोड की हालत जो है वो इंतहाई खराब हो चुकी है। इलाका मकीन जो है वो अपनी सवारियों के साथ साथ पैदल जो है वो भी यहाँ पे गुजरने में इंतहाई दुश्वारी का सामना रहता है। ये रोड सैकड़ों देहातों को शहरों से मिलाने वाली मेन सड़क है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, रोड की हालत इंतहाई खराब है, अपने सियासी नुमाइंदगान को और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा सारा सारी गुजारिश है कि भी सारी सरदार शमशेर खान वज़ारी साहब MNL का 199 को अपील है कि मेहरबानी करके रोड की हालत जी है बहुत खस्ता हालत है। इनकी 40 साल तक रोड को बने हुए मुझे बाद ना रोड मुरम्मत हुई है क्योंकि सब को शुगर केन एरिया है यका अपना गन्ने के ट्रालियां टपदियां उनकी वजह से रोड बिल्कुल खत्म बह गए। मोटरसाइकिल भी रोड ते नहीं गुजर सकता कि मोटरसाइकिल ही पाई थी वजह कि भी एक बंदा अपनी फैमिली के कट्टे वजह पे मोटरसाइकिल पाई थी वजह जिसकी वजह से पत्थर उनके खड़े लगे थे। सारी अपील है डिप्टी कमिश्नर साहब राजनपुर को, अपना कमिश्नर साहब को, वजीर आला मरियम नवाज साहब को मेहरबानी करते सारे इलाके के तवज्जो दी वजे। इलाका जो है बड़ा बहु पसमानदा इलाका है, जिले राजनपुर का आखिर तहसील पंजाब की बहु पसमानदा इलाका है, तवज्जो दी वजे।
खास तौर ते जेह्ड़े बरसर इक़्तदार MNA साहिबान साडी हुन्ने को गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये रोड बहु आबादकार रोड है कि बहु सैकड़े देहात लगते हैं रोड पर जेह्ड़े लोग कप्तान रात नहीं गुजरते हैं बहु लोग परेशान हैं खास तौर ते जेह्ड़े लोग बीमार थींदन उन्हें दा भी बड़ा बुरा हाल थी वेंदे कि भी वो इत्थों के जेल्लै गुजरदन रोड तक नहीं पुजदे बंदा पहले मर वेंदे। जी रोड की हालत इंतहाई ख़राब है। इलाका मकीनों को राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना भी लाक है। मकामी MNA MPAs मकामी सियासतदानों समेत डिप्टी कमिश्नर और हुकूमत वक्त से ये लोग मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द दोबारा से तामीर किया जाए ताकि इन लोगों की मुश्किलात हैं जो वो ख़त्म हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया अफजल फरीदी, हमें अपडेट करे थे। रहीम यार खान में पुलिस ने थाना आबादपुर की टीम के नाके पर फायरिंग के तबादले के दौरान बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को हलाक कर दिया। मुलजिम पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज थे और इसके कब्जे से नाजायज़ असलहा भी बरामद हुआ। DPO इरफान अली समू ने टीम की बहादुरी और कारकर्दगी को सराहा है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई मंशियात की रोकथाम और इलाके में कानून की हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए अहम कदम है। मिंचनाबाद के चक बोंगा माची में नामालूम मुलजिमान ने शहरी के घर में घुसकर फायरिंग की जिससे नौजवान मौका पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है और शवाहिद इकट्ठे करके नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दीना के नवाही इलाके जश्न रेहाना गुजरा में पंजाब के रवायती खेल नेज़ाबाजी का मुकाबला मुनक्किद हुआ। इस मुकाबले में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तफसील देखते हैं जुल्फ़िकार अहमद की रिपोर्ट में। बहादुरों का खेल नेज़ाबाजी पंजाब के मकबूल तरीन खेलों में शुमार किया जाता है। ये न सिर्फ दलेरी बल्कि घुड़सवार की महारत का भी इम्तिहान होता है। चौथी सदी कबल मसीह में जंगजुओं ने इस खेल की इब्तिदा की, जिसका मकसद फौजियों को घुड़सवारी के दौरान तलवार जनी और नेज़ाबाजी की मशक कराना था। तेज रफ्तारी और तवाज़ुन बरकरार रखते हुए सवार जब महारत से घोड़ा दौड़ाता है और जमीन पर लगे खूंटे को नेज़े के जरिए उठाता है तो ये मंजर ना सिर्फ एक खेल बल्कि सदियों पुरानी जंगी रिवायत की झलक भी पेश करता है। जेहलम की सरजमीन तहसील दीना के गांव रेहाना गुजरा में पंजाब के सकाफती खेल नेज़ाबाजी का मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब भर से 57 टीमों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ नस्लों के घोड़ों पर सवार घुड़सवारों ने अपने जौहर दिखाए और जमाने कदीम की याद ताज़ा कर दी। ये रेहाना गुजरा वाले चौधरी इमदाद साहब, चौधरी वसीम, चौधरी अजीम, चौधरी नदीम, चौधरी शुजात और उनकी पूरी टीम ने करवाया है। माशाल्लाह एक बड़ा ही अच्छा इवेंट उन्होंने लगाया, बड़े ज़्यादा बजट के साथ अच्छे इनामात के साथ मेला हो रहा है। तो ये अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ जा रहा है। अभी सेक्शन का फाइनल होगा, उसके बाद जो है फिर तकरीबन 40 सवार सिंगल के मगरब के बाद उनके दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान में नेज़ाबाजी के 200 रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, उनमें से 130 सिर्फ पंजाब में हैं। सबसे तो पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो इधर आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। आज का जो प्रोग्राम नेज़ाबाजी का हो रहा है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये ज़ेर सरपरस्ती चौधरी नदीम खादम हो रहा है। जेएलएम के तकरीबन तमाम क्लब और गुजरात से भी आए हुए हैं। तकरीबन 57 क्लब हैं इधर। इनाम भी अच्छे हैं, सेक्शन के भी 5 नाम हैं, सिंगल के भी 5 नाम हैं। और आपके चैनल के ज़रिए मैं आप सब दोस्तों भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को नेज़ाबाजी और खेलों के मैदान में लाएं और मनशियात से बचाएं। पंजाब का सकाफती खेल नेज़ाबाजी दिलचस्प होने के बायस एक बार फिर नौजवानों में मकबूलियत हासिल करने लगा है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फ़िकार अहमद, स्पेशल न्यूज़ दीना। चौक सरवर शहीद में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक गुलाम कासिम, अमजद परवेज, डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी और असिस्टेंट कमिश्नर जाम मोहम्मद असलम ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में बताया गया कि यह मनसूबा वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ की आवाम के लिए तोहफा है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला में जारी तरक्याती स्कीमों और मुस्तकबिल में सीवरेज सिस्टम, ग्रीन बेल्ट्स और सोलिंग के काम की तफसीलात भी फराहम की हैं। रेस्क्यू 1122 के ज़िले इंचार्ज ने इदारे की खिदमात को सराहा है और इसका तमाम जो सेहरा है वो हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब है, जिनकी खसूसी काविश से इसका जो बजट रिलीज़ किया गया और इसकी टाइमली एग्जीक्यूशन को इंश्योर किया गया। ये मलिक गुलाम कासिम हंजराज साहब हैं, उनकी बड़ी इसमें एफर्ट है कि उनकी एफर्ट के साथ ही इस स्कीम का आगाज़ हुआ था और आज उन्हीं के हाथों इफ्तिताह हुआ है। तमाम अहलिन चौक सरवर शहीद को मुबारक हो कि अब जो तिब्बी सहूलियात हैं, रेस्क्यू और रिलीफ की जो सर्विसेज हैं, अब उनके डोर स्टेप पे उनको प्रोवाइड की जाएंगी। बाकायदा तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर नातिक जो हैं उनकी भी तैनाती हो चुकी
की है मैडम चीफ मिनिस्टर के अहकामात के तहत, और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। यहाँ एक गाड़ी और बाइक्स हैं वो मौजूद हैं, मज़ीद इसमें एक गाड़ी और बाइक्स भी ऐड की जा रही हैं जल्दी। थैंक यू। तुमसा शरीफ की खानका जामे मोहम्मदिया में 14 दिसंबर को 163 तलबा की दस्तारबंदी और दुपट्टा पोशी की तकरीब मुनक्किद होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं सुहेल शहजाद की रिपोर्ट में। खानका जामे मोहम्मदिया तौसा शरीफ में हुफाज कराम, उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम की दस्तारबंदी 14 दिसंबर को होगी। इस हवाले से बानी और मोहतमिम खानका जामे मोहम्मदिया गुलशन मोहम्मद तौसा शरीफ शेखुल हदीस मौलाना हबीबुर रहमान तौसवी ने मीडिया से गुफ्तगू की। हमारे खानका जामिया मोहम्मदिया में दौरा हदीस तखस्सुस तक दर्जात चलते हैं। हमारा एक मिजाज तलबा का कि 11 साल में आलम, 13 साल में मुफ्ती, आखिरी साल में आखिरी दिनों के अंदर अपने मुअज़्ज़िज़ीन की दावत करते हैं, मुआमिनीन की, कि हम पढ़ कर जा रहे हैं, कोई हमारे से कमी कोताही होगी तो माफ़ कर दें। आप भी मुतमईन हो जाएं कि आपने हमारा तामुन किया तो हम 12 साल लगा कर अपने इलाके में जाकर दीन की खिदमत करेंगे। इसी के साथ ही ये भी गुजारिश है कि हर इदारे जामिया के अंदर साल के आखिर में एक तकरीब होती है जिसमें मुफ्ती, आलिम, कारी, हाफिज, हाफजा की दस्तारबंदी, दुपट्टा पोशी होती है। हदीस का आखिरी सबक भी पढ़ाया जाता है, इस नीयत के साथ कि आखिरी सबक के अंदर जो शरीक हो जाएगा तो इंशाअल्लाह उसको सारी किताब और सारी हदीसों के पढ़ाने का सवाब मिल जाएगा। इस सिलसिले में हमारा 14 दिसंबर बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से लेकर असर तक हमारा एक प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह खानका मोहम्मदिया और मरकज़ और शाखों समेत इसमें मुफ्ती, आलिम, कारी, हाफिज, फाजिलात, हाफिजात, कारियात, ये हमारे 163 फाजिल एक साल में तैयार हुए। इंशाअल्लाह 14 दिसंबर को उनको आखिरी सबक भी पढ़ाया जाएगा, कुरान पाक की तफसीर का भी आखिरी सबक, हदीस का भी आखिरी सबक, और इन तमाम 163 की दस्तारबंदी भी होगी, दुपट्टा पोशी भी होगी। उन्होंने कहा इस साल 163 तलबा की दस्तारबंदी की जाएगी। तकरीब में मुल्क के तूलो अर्ज़ से जयद उलमाए कराम भी शिरकत करेंगे। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। माज़ूरों के आलमी दिन के मौका पर अल-खिदमत फाउंडेशन झंग ने अल-खिदमत मरकज़ में तकरीब का इनेकाद किया। इस दिन के हवाले से माज़ूरों के लिए क्या सहूलियात दी गई हैं, तफसील बता रहे हैं इमरान गुल। जी इमरान गुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, माज़ूरों के आलमी दिन के हवाले से अल-खिदमत फाउंडेशन झंग की जानब से आज अल-खिदमत मरकज़ के ऊपर जो है जो चलने से माज़ूर अफराद हैं उनके अंदर व्हील चेयर तकसीम की गई हैं, जो बेनाई से महरूम हैं उनको स्टिक्स दी गई हैं। मज़ीद हमारे साथ जो अल-खिदमत के जो ज़िलाई सदर हैं डॉक्टर सोहेल फ़ारूक मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं। सर जी बिल्कुल, ये जो आज व्हील चेयर्स यहाँ पर तकसीम की गई हैं इसके हवाले से अल-खिदमत की जो मज़ीद इसमें जो पेश रफ्त है उसके मुतल्लिक़ हमारे जो नाज़रीन उनको आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ मनाया जाता है। 2007 से पहले इसको इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सन कहते थे। 2007 में फिर इसका नाम तब्दील कर दिया गया इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और इसमें हर किस्म की डिसेबिलिटीज़ को शुमार किया जाता है, चाहे वो जिस्मानी हो या जहनी हो। और हर साल इस प्रोग्राम का, इस दिन का एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है वो ये है कि ऐसी सोसाइटीज़ और ऐसी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया जाए जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करती हैं। और उन्हीं में से एक सोसाइटी अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है जो हर साल इस दिन को ऑब्ज़र्व करती है। और इस साल भी हमने यहाँ पर तकरीबन 26 डिसेबल्ड पर्सनस में व्हील चेयर्स तकसीम की हैं और विजुअली ब्लाइंड पर्सनस में वाइट स्टिक्स तकसीम की हैं। अब तक अल-खिदमत फाउंडेशन 546 व्हील चेयर्स जो है वो डिसेबल्ड पर्सनस में तकसीम कर चुकी है। और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि ये जो माज़ूर अफराद हैं इनको, इनकी इज़्ज़त नफ्स को कायम रखते हुए मुआशरे में इनका जो किरदार है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो ये मकसद है इस दिन को ऑब्ज़र्व करने का। जी, जैसा कि जो सदर अल-खिदमत फाउंडेशन के वो तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, उनका यही कहना था कि ऐसे अफराद की हौसला अफजाई ही अल-खिदमत फाउंडेशन का मकसद है। जी बहुत शुक्रिया इमरान गुल, हमें अपडेट कर रहे थे।
چونیا میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار جھنگ منیر سدھانا اور وہاڑی کے وکیل ذیشان شبیر کے قتل کے خلاف چونیا بار کے وکلاء نے سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے شہر کی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا ہے، جس سے شہریوں اور دور دراز سے آنے والے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وکلاء نے مطالبہ کیا کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے تحت FIR درج کر کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ DSP چونیا بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور وکلاء نے کہا کہ مطالبات نہ مانے جانے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ جام شورا میں یونیورسٹی آف سندھ میں ویمن ڈیولپمنٹ اور سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 16 دن کی سرگرمیوں کے سلسلے میں ڈیجیٹل تشدد، سائبر کرائم اور خواتین کے تحفظ کے لیے حوالے سے آگاہی سیشن منعقد ہوا، جس میں طالبات کو سوشل میڈیا کے محفوظ استعمال اور ڈیجیٹل ہراسگی سے بچاؤ کی تربیت بھی دی گئی۔ سیشن کی صدارت سیف ہاؤس کی انچارج سیدہ قرۃ العین شاہ نے کی، جبکہ مقررین نے نوجوانوں کو محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرنے اور خواتین کے تحفظ کے لیے قانونی اور اجتماعی ذمہ داریوں پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ خیرپور پولیس نے SSP ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کی ہدایت پر ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے رات گئے 2 مختلف مقامات پر مقابلے میں 2 بدنام زمانہ ڈاکو عزیز اللہ اور رحمان جاگرانی کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ملزمان پر چوری، ڈکیتی اور دیگر سنگین مقدمات درج تھے۔ پولیس نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی اور جلد ٹارگیٹڈ آپریشنز کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ ٹنڈو محمد خان کے قریبی گاؤں ملا قاتیار میں حسین ملا کے قتل کے خلاف ملا فورم اور ملا برادری کے رہنماؤں کی قیادت میں مین بدین روڈ پر دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے پولیس پر قاتلوں کی عدم گرفتاری اور مقتول کے ورثاء کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا الزام بھی عائد کرتے ہوئے حکومت سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ हींअर गाड़ी वारी थियूं उन्हनि में इहो थियो त सुभाणे जे लाइ तइ पिए कयूं त सुभाणे असांजो उते कराची में पूरी केसिस रखियल उते हूंदासीं, पर ईअं 12 खां 2 बजे जे विच में SSP टंडो मोहन खान सां मीटिंग रखियल आहे, जंहिंमें असां उनखे इहो ज़ोर भरियो आहे त जेके हक़ी जेके माण्हू आहिनि उनजा नाला दाख़िल कया वञनि, जंहिंमें उहो जेको शाह जो नालो छा आहे, शेर शाह जो नालो या ॿिया जेके आहिनि उनजा नाला दाख़िल कयो, जेके कंपनी में ख़ुदि चवनि था त असांजे ॾोह में आहिनि उनजा नाला दाख़िल कयो, या फर्दर इंक्वायरी में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उहे जेके से चालान में नाला विझो त जेके उनमें उहा असांखे उन ख़ातिरी कराई आहे त पर इहे सभु शयूं असां SSP जे रूबरू में इहे सभु शयूं तइ कंदासीं ऐं असां कानूनी सहकार लाइ असां हर वक़्तु इन लाइ तयारु आहियूं। जेके हिननि ते पूरियूं एफआईआरूं आहिनि या पूरियूं कंप्लेनूं आहिनि कंहिं सियासी इन्फ्लुएंस तहत उन में असां हिननि खे जेको बलान पैदा उन सां हर जेको सो कदम दसी गॾु आहियूं ऐं जेके बेॾोही आहिनि जिन जो को ॾोह बि कोन्हे उन्हनि सां असीं कानूनी सहकार हर वक़्तु मौजूदु आहियूं। कोटरी में रेलवे कॉलोनी के तारीखी चर्च की बहाली का इफ्तिताह सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर एंथनियो नवीद ने किया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल आसार क़दीमा अब्दुल फातह शेख, मुकामी मजहबी और सियासी शख्सियात और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि चर्च की बहाली अक़लियती बरादरी की मजहबी आज़ादी और सिंध में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का अमली सबूत है। बहाली का काम 150 दिन में मुकम्मल होगा और मंसूबे पर तकरीबन 30 मिलियन रुपए खर्च होंगे, जिसमें बुनियादी सहूलियात भी शामिल हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।